Good morning, all. I am Professor Nachi Sayed, Head of Department and Subject Teacher for Estimating and Costing. Welcome to the third unit, that is Detail Estimate. In this video, we will see the first topic, that is what is detailed estimate, what are the purpose of detailed estimate, what are the data required for detailed estimate, what are the general factors and various terms in detailed estimate. Then, learning outcome student will achieve during this unit is: describe the procedure of preparation of detailed estimate for the given civil structure. Student will able to identify the data required for given type of estimate. Course outcome student will achieve during this session is: prepare detailed estimate of civil engineering work. Program outcome, that is PO1 to PO10 and PSO1 and PSO2 full will be achieved. Then, what is detailed estimate? A detailed estimate is prepared after it complete set of drawing are ready. जब भी आपकी ड्राइंग रेडी हो जाती है उस पे से हम लोग एक एस्टिमेट निकालते हैं जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एस्टिमेट. अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट और डिटेल्ड एस्टिमेट में क्या फ़र्क है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट इज prepared on the basis of approximate quantities, but detailed estimate is prepared on the basis of detailed and exact quantity. The quantity of various item of work are worked out from such drawing and are multiplied by the present rate of item of work to arrive at estimated cost of the work. Drawing उससे quantity निकालेंगे, उसको rate से multiply करेंगे तो आपको detailed estimate मिलेगा. Then what are the purpose of detailed estimate? To know the quantity of item of work, to know the material required of each item of work, to know the cost of each item and overall cost of project, to know the amount of money required in different phases of construction phases, to know the feasibility of project and to make the arrangement of material required. Then what are the data required for detail estimate? अगर आपको detail estimate बनाना है तो आपको क्या क्या डेटा लगेगा? ड्राइंग, उसके बाद स्पेसिफिकेशन मतलब कि किस वे में काम होने वाला है, रेट्स, मटेरियल के लेटेस्ट रेट्स और उसका मोड ऑफ मेजरमेंट. देन फैक्टर टू बी कंसिडर ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट. आपको डिटेल एस्टिमेट बनाया था तो क्या क्या फैक्टर पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा? नेचर ऑफ वर्क, किस टाइप का वर्क आप कर रहे हो, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, उस साइट पर मटेरियल और क्वांटिटी जो भी मटेरियल्स है वो प्रॉपरली अवेलेबल हो जाएंगे क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, जहाँ भी आपकी साइट है वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, लोकेशन ऑफ साइट, साइट कहाँ पर है, अगर जंगल में है या फिर इरिगेशन साइट है या फिर कैनल का करके कैसे है, एंड लोकल लेबर चार्जेस लोकल लेबर के क्या है. देन व्हाट इज कॉन्टेंजेंसी. सब छोटे छोटे टर्म्स अभी हम लोग मीनिंग देखेंगे. कॉन्टेंजेंसीज मतलब क्या? It is the incidental expenses of a miscellaneous character which cannot be reasonably predicted during the preparation of estimate, and to meet such or foreseen expenses an additional amount of 3% to 5% of the estimated cost work is provided in the total estimate. Contingencies मतलब क्या? Contingencies कुछ भी नहीं, सिंपल, ये एक ऐसा क्वांटिटी रहती है जो हम एस्टिमेट बनाते समय नहीं कंसिडर कर सकते, पर ये एकदम इंसिडेंटली. फॉर एग्जांपल आपका लेबर जिस दिन स्लैब हुआ, आपको अगर लेबर को रिफ्रेशमेंट देना है तो लेबर का रिफ्रेशमेंट हम एस्टिमेट में नहीं काउंट कर सकते. हमको नहीं पता था कितना लेबर आएंगे रिफ्रेशमेंट में, तो हम क्या करते, ऐसे सब चीज़ के लिए 3 to 5% एक्स्ट्रा चार्जेस हम अलग से निकाल के रख देते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टेंजेंसीज. फॉर एग्जांपल आपका पंपिंग मशीन है, उसमें डीजल लग रहा, हम डीजल का अलग से एस्टिमेशन में जॉइंट नहीं करते, कॉस्ट ऐड नहीं करते, उसको कॉन्टेंजेंसीज में 3 to 5% में ऐड करते हैं. देन वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट. ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट considerable number of skilled supervisor, work assistant, watchman etc. are employed on temporary basis. The salary of this person are drawn from the lump sum amount allotted towards the work charge establishment, that is establishment which is charged directly to work. देखो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट मतलब क्या? जब भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हम लोग तो हमको ऑफिस सेट करना पड़ता है इंजीनियर्स को बैठने के लिए, देन ड्राइंग देखने के लिए, देन वॉचमैन रहते, सर्टन लेबर्स असिस्टेंट रहते. तो इन सबका रहना, उनका काम, ऑफिस बनाना, इन सबका कंस्ट्रक्शन का खर्चा बोले तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, कुछ भी वर्क का एस्टेब्लिश करना.
तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल कॉस्ट निकली उसका 2 से 2.5% ले लेंगे वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि भाई जब जब नया साइट चालू होगा तो उसमें ऑफिस रहेंगी, इंजीनियर को बैठने को जगह रहेगा, खाने के लिए कैबिन रहेंगी, ये सब बनाने के लिए 2 से 2.5% हमको खर्चा आएगा। What is percentage charges? When an engineering department executes the work of another department of government or local body, a percentage amount of 10 to percent 15 is recovery of the cost of establishment, planning, designing, supervision is called as percentage charge. Percentage charge मतलब हम किसी का भी अगर काम करेंगे तो हम हमारे प्रॉफिट के लिए 10 से 15% हम लोग निकालेंगे, उसको बोलते हैं percentage चार्ज। वो काय के लिए निकालेंगे, हमने प्लानिंग करे, डिजाइन करे, सुपरविजन करे, हमने उनका प्रोजेक्ट पूरा देखे उसके लिए। Tools and plant. For a big work or project, 1 to 1.5% of estimated cost is provided in estimate of for purpose of tools and machinery required. अलग अलग मशीन जो अपने को लगती है उसके लिए 1 से 1.5% हम लोग अलग से टूल्स एंड प्लांट का निकालते हैं। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट, लेबर है, इंजीनियर है, इनको वाटर सैनिटरी के लिए जाना है, वाटर सप्लाई तुमको लगेगा, तो उसके 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, इलेक्ट्रिफिकेशन जिसको बोलते हैं, रहने के लिए फैन लगेंगे, हमको बैठेंगे तो हमको ये लैपटॉप्स इसको चार्ज करने के लिए हमको इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, मशीन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगनी है, इसके लिए भी हम क्या करते हैं 8% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते हैं। देन एमएसपीटी में इस पर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक्सप्लेन डिटेल एस्टिमेट, कॉन्टेंजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, एक्सप्लेन परसेंटेज चार्ज, एक्सप्लेन पर्पस ऑफ डिटेल एस्टिमेट। अब हमने ये सब वीडियो देखे तो व्हाट द यूनिट आउटकम वी हैज अचीव्ड, डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट फॉर गिवन सिविल स्ट्रक्चर, स्टूडेंट विल एबल टू आइडेंटिफाई द डेटा रिक्वायर्ड फॉर गिवन टाइप ऑफ एस्टिमेट। प्रोग्राम आउटकम अचीव्ड PO1 to PO10 एंड PSO1 PSO2। सो एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे, आज हमने क्या देखे। आज हमने डिटेल एस्टिमेट देखे, पर्पस देखे, डेटा रिक्वायर्ड फॉर डिटेल एस्टिमेट देखे, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ डिटेल एस्टिमेट देखे, कॉन्टिजेंसीज, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, सेंटेंस चार्जेस, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिफिकेशन। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल बी न्यूमेरिकल ऑन लॉन्ग बॉल एंड शॉर्ट बॉल और सेंटर लाइन मेथड। कीप लर्निंग।